All right, so now that you can create a pictorial design in Minitab, you can understand what are the main effects, what are the interactions, what is the significance, the different types of designs. Let's move on and see what is included in the 10 or 11 steps of DOE methodology. Now, this is a slide that we discussed earlier. These are the 10 steps, or as I told you, we may be dividing one step in two parts, so it might become 11 steps. Before you uh, select a design, there are a few things you must consider, because at the end of the day what you are doing is by nature a project. So a project, no matter what kind of project it is, if it is large enough, it has to be chartered, it has to be scoped, there are stakeholders, there are finances involved, there are so many other things involved. So you've decided to use designed experiments. Shown here are 10 basic project management considerations before running any experiment. This is obviously not an exhaustive list, but certainly some important questions to consider and answer. What is behind some of these questions? Let's briefly discuss a few aspects individually. First, access to a process is necessary for proper monitoring and execution of a project. If restricted access for whatever reason exists, then workaround must exist. You must have access. Otherwise, you won't be able to collect the data, you won't be able to run the experiment. Second, if the team members or subject matter aren't fully involved, the experts, then potential conflicts or unrealistic designs may be awaiting you for a poor experiment. So you must have in your team people who actually own the process, they work on it, and they relate to it. That is a kind of a political prerequisite of any experiment. Thirdly, if the process owners and stakeholders are unknown to you before execution of an experiment, rude awakenings such as cancellations, schedule conflict, and other nightmares can occur. So you must know the process owners, you must know the stakeholders, and they should know that you are going to conduct this experiment. Four, no one wants to be told that things will happen to their process that they don't know. So if you don't involve them in the experimental design, even if it involves reviewing the team's designed experiment, how could you expect cooperation? So not only should they know what you're doing, they should be involved as well. Five, if the process owners do not understand what your DOE is, how can they assist you? So they should understand what's going on. Even more, they should understand what benefits they have, what kind of risks might occur, particularly those that relate to the stoppage of the process. So they should know what DOE is. Then, six, does your DOE intend to make a wide range of quality products or potentially produce an unacceptable product in the quest to improve the process? If the process owner has never known what your DOE limitations are, how can they not be upset if they are surprised by the results of DOE? So they should know what does it practically mean to conduct, execute this DOE, and what things would happen as a consequence. Seven, time and money impact scheduling, randomization, testing concerns, and so many things. All of these must be considered, especially when using the actual process. So, uh, can you really afford the number of experiments you are planning to conduct? What kind of time is involved? What kind of money is involved? Everyone should have an agreement on this before you start your project or your experimentation. Eight, it is often desirable to run DOE in a pilot plant
or facility, but this is not often the case. If a pilot facility is to be used, do the results match the process when translated outside the laboratory? So this is a major decision to be made, that the DV that you would be conducting, would it be kind of an experiment in a controlled environment, a lab or something, a pilot setup, or will it be uh, in the real scenario, real setup? For example, in a factory, would you do it on the actual machines? Because that implies stoppage of the normal process, perhaps, and so many other things. So this has to be clear from the very start. 9. Noise variables cannot be controlled by definition. That is what noise is, right? Uh, it is a lot of random factors that are mostly not in your control. But if ambient weather is considered to have an effect on your process, it is known to disrupt the kind of experiment you will be conducting. Why would you execute an experiment when a cold or a warm front is passing through your area? This is one example of a known disturbance being designed around. There can be so many others. So you must uh, clearly know what noise variables need to be designed around, or they need to be mitigated for your experiment. And finally, number 10, manage your project to know if the DOE is intended to stretch the boundaries of conceived products creation or work well within a small experimental area. So, what is the kind of scope or the experimental region that will be explored for design of experiment? This should be known to you very clearly, and this should be agreed upon with all the stakeholders. So these were the considerations that you must keep in mind from a project management perspective. And now let's see some technical considerations. So from a technical perspective, uh, the fundamental question is, what are the objectives for your set of experiments? So what does it include? What does it have to address? Number one, what factors are important? What are the x's or the independent variables that are important in this experiment? Then what is the operating range for each factor? For every independent variable, the system has its own operating ranges. For example, when you are riding a bicycle, a sports bicycle, it might have 3 gears on the front wheel and 7 gears in the rear wheel. These are the operating ranges of your bicycle. So you must know the operating ranges of the process that upon which you are going to conduct experiments. Otherwise, you won't be able to set the levels of factors. Next, how can I minimize both the cost of DOE and the cost of running the process? As we discussed earlier, one of the fundamental aims of design of experiments is to run an efficient experiment. If the costs and time they run out of hand, probably you'll have to abort your experiment, and a lot of effort will go waste. Then how much change in the process do we require? Now, uh, as we discussed earlier, the experiment, either it has to be uh, conducted in controlled environments, in a lab kind of thing, in a pilot facility, or in the actual process. So if you're conducting the experiment in the actual process, what kind of change would you require to conduct your experiment? Would you disrupt the entire production process completely during the tenure of your experiment, or will it be some changes in the process? How close to optimal does the process currently run? So, uh, since you are going to bring improvements in the process, that is the basic premise of DOE, right? So, if you're going to improve something, you must know what it is right now, right? If you don't know the current state, how would you improve something? So, you must know how close to optimal does the process currently run, so that you can at the end see the difference and see if the changes that you have exercised during the
during the experiment, they should be put in place or not. Are we tackling a centering or a variation problem? If you go back to our third topic and the fourth topic, in statistics, we learned that improving the process means either or both of these two things. Number one, centering. Number two, reducing the variation. So what are you targeting? Are you looking to center the process, or you are looking to reduce the variation in the process? Or are you looking to do both of them? Then what impact to the process while running the DOE? When you'll be running your design of experiments, what kind of impact you'll have on the process? This is kind of an extension of uh, the, the point that we discussed earlier. How much change in the process do we require? Then what is the cost of competing DOE designs? You've selected, for example, a full factorial design. You must know what is the cost of doing a response surface design. What is the cost of doing a fractional factorial design? And you should also share these costs with the stakeholders, and they should know that by selection of a particular design, what is the kind of money they're spending, the kind of time they'll be spending, and the advantages they'll have because this design has been chosen. And finally, what do you know about the process interactions? We've studied interactions earlier, interaction of variables. So if there's anything about it that you know already, it should also be noted before you start your experiments. All right, so now that we've seen the project management considerations and technical considerations, let's go back to this slide and discuss each step in detail one by one. So the first step is define the practical problem. When you're defining the practical problem, you'll have to write down how the experiment connects with the original project scope. Practically speaking, what is the experiment supposed to accomplish? Are you trying to identify some root cause? Are you trying to measure the variation and reduce it? Are you trying to measure the output response and then optimize it? So let's for all these 10 or 11 steps that we'll be studying, let's take the example of a project, and the definition in the step one for it, definition of the practical problem is that a circuit board manufacturer wants to identify what factors impact the adhesion level between circuit boards. The factors and outputs had satisfactory gauge RNR results of less than 15% steady variation. What is gauge RNR results? It means that whatever tool we are using to measure the adhesion between circuit boards, the tool that we are using to measure the adhesion, they are calibrated and reliable. So the practical problem is we want to know what are the factors that would impact the adhesion level between circuit boards. Now this is step one. Step two is establish the experimental objective. So for our case, the experimental objective is the output of interest is the tackiness of the top surface of the circuit boards. We want to maximize the output response. So just to make sure you know what is tackiness, tackiness is viscidity or the property of being sticky and cohesive. कितना ज़्यादा जुड़ता है वो इस सरफेस सर्किट बोर्ड की, उसको टैकीनेस कहते हैं. तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्किट बोर्ड है उसकी सरफेस बहुत टैकी हो, वो जुड़ना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े दूसरे बोर्ड्स के साथ अगर हम उस पर लेयर्स करना चाहते हैं तो. नाउ for this step, establishing the experimental objective, our objective must include the critical characteristics and the desired outcome.
If the experiment and project is tackling recurring issues, consider a different critical characteristic. So it should not be a recurring issue. The characteristic, the one that is your objective, in our case it's tackiness. It may require a different physical phenomena being measured or with a different measurement system. हो सकता है कोई चीज़ आप डायरेक्टली मेजर ना कर सकें, उसको किसी प्रॉक्सी से मेजर किया जाए. जैसे जैसे आपको आप लोग अपने हार्ट की कंडीशन जो है वो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो उसको अपने ब्लड टेस्ट में देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है. तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव आपका किसी और चीज़ को मेजर करने से पूरा हो जाए. द मेजरमेंट सिस्टम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी मे इन्फ्लुएंस द स्पेसिफिक आउटपुट टू बी मेजर्ड. आप किस चीज़ से मेजर करेंगे उससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है. आपका जो गेज है, जो आपका टूल है, जो आपकी मशीन है जिससे आप ये अपना आउटपुट का रिस्पांस मेजर करेंगे, वो क्या है. यू मस्ट नो वेरी क्लियरली. उसकी कैलिब्रेशन, उसकी एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए. अब मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के मुख्तलिफ आउटकम्स होते हैं, तो आपको क्या चाहिए वो बड़ा क्लियरली आपको पता होना चाहिए. और वो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जैसे कोई रूट कॉज एलिमिनेट करना है, कोई वेरिएशन कम करनी है, कोई टारगेट अचीव करना है, किसी आउटपुट रिस्पांस को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है, या इंश्योर करना है कि कोई प्रोसेस या प्रोडक्ट जो है उसमें वेरिएशन कम से कम हो और वो रोबस्ट हो, हमेशा वो रिज़ल्ट दे जो आपको रिज़ल्ट्स चाहिए. तो ये है स्टेप 2 कि आप अपना एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियरली इस्टेब्लिश कर लें. तो हमने क्या इस्टेब्लिश किया जी कि हमें अपने टॉप सरफेस, अपने सर्किट बोर्ड की, उसको टैकी बनाना है. उसको उर्दू में कहें तो चिपकने वाली बनाना है. ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चिपकने की सलाहियत होनी चाहिए. अगला स्टेप है जी स्टेप नंबर 3, सिलेक्ट द आउटपुट वेरिएबल्स. आपको रिस्पांस क्या चाहिए उसको सिलेक्ट करें. ये हमारे केस में हमने ये तो फैसला कर लिया कि हमें टैकीनेस बढ़ानी है, लेकिन उसकी डिटेल ये है कि द आउटपुट इज़ टैकीनेस एंड इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स. उसका यूनिट जो है वो न्यूटन्स है. द आउटपुट मेजरमेंट मस्ट बी डन विद इन एन आवर ऑफ प्रोडक्शन. 1 घंटे के अंदर अंदर मेजरमेंट करनी है. एंड द मेजरमेंट सिस्टम हैज़ नॉट चेंज्ड. उसी चीज़ से करना है जिससे हम मेजर करते आ रहे हैं. वी वांट टू डिटेक्ट एटलीस्ट अ चेंज इन टैकीनेस ऑफ 15 न्यूटन्स इन द रिस्पांस वेरिएबल. अगर हम पिछली रीडिंग से अगर हम ये कहेंगे कि आज तब्दील है रीडिंग, तो वो तब्दीली कम से कम 15 न्यूटन्स की होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमने आउटपुट रिस्पांस को सिलेक्ट कर लिया डिटेल में. अब इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे जैसे आउटपुट आपकी क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है. क्वांटिटेटिव होगी तो ऑब्वियसली उसको मेजर करना आसान होगा अगर आपके पास उसके टूल्स मौजूद हैं. क्वालिटेटिव है तो फिर आपको कोई प्रॉक्सीज़ के थ्रू उसको मेजर करना पड़ेगा, किसी और चीज़ को मेजर करके इसको समझना पड़ेगा. आपके बेस लाइन्स क्या हैं इसके, यानी आप अभी तो रीडिंग्स लेने लगे हैं, लेकिन नॉर्मली आपके प्रोसेस के अंदर क्या रीडिंग आती है वो आपको पता होनी चाहिए. फिर आपका ये जो प्रोसेस है ये स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है कि नहीं. अब स्टैटिस्टिकल कंट्रोल क्या होता है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो आउटपुट होती है उसको हम कंट्रोल चार्ट से मेजर करते रहते हैं. और किसी प्रोसेस को हम तभी चलाते हैं जब वो स्टैटिस्टिकली कंट्रोल में होता है, वरना उसको हम नहीं चलाते हैं. तो ऑब्वियसली आप कोई भी एक्सपेरिमेंट भी रन नहीं करेंगे जब तक आपका प्रोसेस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं है. फिर क्या ये आउटपुट जो है ये वक्त के साथ बदलती है, यानी सुबह, दोपहर, शाम, एक दिन दूसरे दिन कुछ और होती है, या स्टैंडर्डाइज्ड रहती है, ताकि आप उसी तरह कंपेयर कर सकें. हम कितनी चेंज डिटेक्ट करना चाहते हैं, जैसा हमने बताया कि हम 15 न्यूटन तक डिटेक्ट करना चाहते हैं. क्या हमारा टूल, मेजरमेंट का जो टूल है या सिस्टम है वो सही है या नहीं. और ये चीज़ भी कि हमारे वाई टोटल है कितने, या आउटपुट वेरिएबल्स या डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं कितने, 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं. तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए. स्टेप 3 है जी कि आप अपना वाई या आउटपुट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल
सेलेक्ट करें और उसकी ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर दें। हमने क्या डिफ़ाइन किया कि हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स टेकिनस है, मेजर करना है न्यूटन में, 1 घंटे के अंदर अंदर प्रोडक्शन के अंदर मेजर करना है, उसी टूल से मेजर करना है जो सिलेक्टेड है, और कम से कम 15 न्यूटन की टेकिनस हम डिटेक्ट करना चाहते हैं। अगला स्टेप है जी नंबर 4, सिलेक्ट द इनपुट वेरिएबल्स या सिलेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हमारे केस में हमने क्या सिलेक्ट किया जी? द इनपुट्स सिलेक्टेड बाय द टीम फॉलोइंग द 6 सिग्मा मेथडोलॉजी आर, पहली ड्वेल टाइम सेकेंड्स में, दूसरी टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फ़ारेनहाइट में, और तीसरी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन परसेंटेज सॉलिड्स में। तो 3 हमारे फैक्टर्स हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और नॉइज़ फैक्टर्स ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वर रिकॉर्डेड एंड मॉनिटर्ड। 3 हमारे फैक्टर्स हैं और 2 नॉइज़ फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, नॉइज़ फैक्टर्स वो होते हैं जो कि जनरली हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन हमें ये पता होता है कि उनकी वजह से प्रोसेस पे कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। अब इसकी डिटेल्स क्या हैं, ये फैक्टर आपको कौन बताएगा? किसी भी आप एक्सपेरिमेंट रन करने लगे हैं, जैसे हमने पौधे के एक्सपेरिमेंट की बात की, जैसे हमने कैटरपिल्ट के एक्सपेरिमेंट की बात की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सेस या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं? तो ये आपको अगर आप 6 सिग्मा प्रोजेक्ट करते हुए आ रहे हैं तो एनालाइज फेज़ में इसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, वरना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि ये फैक्टर्स कौन से हैं। अब एक सवाल ये आता है कि अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को ये सारे फैक्टर्स पता है तो फिर आपको क्यों इन्होंने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने को कहा? तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स काफ़ी नहीं है, आपको उसके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा कि ऐसे प्रोसेस और कितनी जगहों पे रन हो रहे हैं, उनमें कौन से फैक्टर्स हैं। शायद आपको कोई पायलट टेस्टिंग करनी पड़े फैक्टर्स को समझने के लिए, लेकिन पहला स्टेप ये है कि उन फैक्टर्स को समझना है। दूसरा, ऑल फैक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसे फैक्टर आपने नहीं रखने हैं जो कि एक को एड्रेस करे तो दूसरा ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाए। अगर वो ऑटोमेटिकली एड्रेस होना है फिर उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसों को रखें जो दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। पहले अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं आपके एक्सपेरिमेंट से पहले, तो उनके रिज़ल्ट्स को ज़रूर पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि फैक्टर्स जो आप चूज़ कर रहे हैं वही फैक्टर्स हैं या नहीं। टेस्ट द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स फर्स्ट। अगर बहुत लंबी लिस्ट आ गई है फैक्टर्स की, तो उनमें से जो क्रिटिकल है या मोस्ट लाइकली हैं, जिनको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स मोस्ट लाइकली समझते हैं, उनको पहले टेस्ट करें। जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपने अपने एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल के तौर पे नहीं लिया, उनको कांस्टेंट रखें और रिकॉर्ड करें कि किस लेवल पे वो चल रहे हैं। और जो नॉइज़ फैक्टर्स हैं वो ऑब्वियसली उनको भी लिस्ट होना चाहिए और उनको मॉनिटर होना चाहिए। तो अगेन हमारे केस में रिपीट करते हैं कि हमारे 3 फैक्टर्स थे। पहला है ड्वेल टाइम। सेकंड्स में ड्वेल टाइम का मतलब है कि आपकी जो सर्किट बोर्ड है वो कितनी देर सोल्यूशन के अंदर पड़ा रहा, जो एडहेसिव के सोल्यूशन में आपने उसको रखा। वो जो दूसरा फैक्टर है कि उस सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या था डिग्री फ़ारेनहाइट में, और तीसरा सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या थी परसेंट ऑफ सॉलिड्स में। और आपने फैसला किया कि आपके नॉइज़ फैक्टर्स हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इनको रिकॉर्ड करना है और मॉनिटर भी करना है। तो ये था जी स्टेप 4। तो जैसा कि हमने पीछे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करते हुए और मिनी टैप को डिस्कस करते हुए देखा कि जब हमें अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या एक्सेस पता चल जाते हैं या हम फैसला कर लेते हैं वो कौन से हैं, तो फिर उसके बाद हमने फैसला करना होता है कि उनके लेवल्स क्या रखेंगे हम एक्सपेरिमेंट में। जो हमने हायर लेवल और लोअर लेवल की बात की थी, +1 और -1 की बात की थी, तो नेक्स्ट स्टेप फिर लॉजिकली स्टेप नंबर 5 यही है कि चूज़ द लेवल्स फॉर द इनपुट वेरिएबल्स। Factor levels must be considered to create the desired change in output response identified in step 3. अब क्यों रखते हैं हम लेवल?
क्योंकि ऑब्वियसली हमने चीज़ें मॉनिटर करनी हैं, उनकी बेसिस पे फैसला करना है कि आउटपुट रिस्पांस क्या आ रहा है, तो पर्टिकुलर लेवल्स हम स्टडी कर सकेंगे, तभी हम उसका रिलेशनशिप देख सकेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डू नॉट क्रिएट अनसेफ कंडीशंस और बियॉन्ड द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, यानी ऐसे फैक्टर्स ना रखें जिसमें कोई अनसेफ कंडीशंस पैदा हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जनरेटर से बिजली बनाना चाह रहे हैं और उसको स्टडी कर रहे हैं, वो 1000 मेगावाट का जनरेटर है, लेकिन चूंकि उसकी एज ज़्यादा है तो आखिरी ओवरऑल में उसको 800 मेगावाट पे लिमिट कर दिया गया था। तो आप फिर 850 या 900 का लेवल ना रखें, क्योंकि वो अनसेफ है, वो हीटअप हो जाएगा और कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट को कंस्ट्रेन करें। अगर आपको प्रोसेस इम्प्रूव करना है तो फिर प्रॉब्ली उस जनरेटर पे एक्सपेरिमेंट होना ही नहीं चाहिए। आप सिस्टम को बताएं कि आपको एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहाँ पे आप टेम्परेचर 1100 तक ले जा सकें, लेकिन अनसेफ नहीं होना चाहिए। आप चेंज करें जनरेटर को, 1100 या जितना भी आप रखना चाहते हैं वो सेफ़ होना चाहिए। और ना सिर्फ ये होता है, बल्कि एक्चुअली मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में आपको अनसेफ लिमिट इसमें तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके करीब भी जाते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए और तमाम इंडिकेटर्स को देखना चाहिए कि कहीं प्रोसेस जो है वो जैसे आप जनरेटर को हाई स्पीड पे या हाई पावर पे चलाते हैं तो आप उसके कूलिंग वाटर के टेम्परेचर्स को मेजर करते हैं, उसके बेरिंग्स के टेम्परेचर्स को मेजर करते हैं, तो उन चीज़ों को और से देखते रहें। अगली चीज़ ये कि यू मस्ट रियलाइज़ दैट जब आप मुख्तलिफ़ सेटिंग्स पे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आउटपुट काफ़ी इम्कान होता है कि वो नहीं होगी जो कस्टमर को चाहिए। अगर आप एक्चुअल फैक्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन के अंदर एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो आउटपुट निकलेगी वो इस चीज़ का इम्कान है कि वो जो कस्टमर्स की बताई स्पेसिफिकेशंस हैं उसके आउटपुट ना हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, और अगर ऐसी आउटपुट निकल रही है तो उसको फिर प्रोसेस से गुजर के आगे कस्टमर की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि एज एन आउटकम ऑफ प्रोसेस डिस्कार्ड हो जाना चाहिए या स्टडी के लिए साइड वे हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने ये रखनी है कि अब चाहे आप कोडेड लेवल यूज़ करें, यानी -1 +1 यूज़ करें मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स के लिए, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस लैंग्वेज में उसका क्या मतलब है, यानी -1 का मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड और +1 का 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। तो कोडेड लेवल बेशक यूज़ करें, लेकिन आपको एक्चुअल प्रोसेस लैंग्वेज में भी पता होना चाहिए कि उस कोडेड लैंग्वेज का क्या मतलब है। और आखिरी चीज़, आप फैक्टर लेवल क्या रखेंगे ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव क्या थे। अगर आप स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत सारे वेरिएबल्स में से क्रिटिकल फ्यू वेरिएबल सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें रेंजेस काफ़ी बड़ी होती हैं, यानी जो लोअर और हायर लेवल ऑफ वेरिएबल होता है उसको दूर दूर रखा जाता है। एक तरफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर लेवल है तो हायर 800 रख लें, 700 रख लें, 600 रख लें, यानी इनके दरमियान डिस्टेंस बड़ा होता है स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट्स में। जो फुल फैक्टोरियल होते हैं उनके अंदर ये जो फ़र्क होता है लोअर और हायर लेवल में, ये छोटा हो जाता है। आपने एक 100 रखा है तो दूसरा 200 रखा होगा, तीसरा 300 रखा होगा अगर 3 है तो। और जो रिस्पॉन्स सरफेस है RSM के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा नैरो होता है। अगर आपने 100 रखा है, फिर अगला 105 रखेंगे, फिर 110 रखेंगे, क्योंकि बेसिकली रिस्पॉन्स सरफेस में हम कर्वेचर मेजर कर रहे हैं। अब कर्वेचर क्या चीज़ होती है ये हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। भी आपको आपके सामने एक तस्वीर या डायग्राम सी नज़र आ रही है। इसमें हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल ऑफ फैक्टर और हायर लेवल ऑफ फैक्टर, यानी नेगेटिव माइनस रीडिंग और प्लस रीडिंग के दरमियान जो आउटपुट है उसको देखें आप, तो वो एक स्पाइक लेके वापस आ गई है। तो अगर आप इन्हीं दो फैक्टर्स पे मेजर करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई फ़र्क नहीं है। लोअर पे भी आउटपुट जो है, फॉर एग्जांपल ये जो
डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 5 पे है लेट्स से, तो आपको लगेगा कि लोअर सेटिंग पे भी 5 रहती है और हायर पे भी 5 रहती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो बीच में वो 7 और 8 से घूम के वापस 5 पे आई है। तो इसको हम कहते हैं कि ये आउटपुट में कर्वेचर था। तो हम कर्वेचर को मेजर करने के लिए सेंटर पॉइंट्स रखते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, या इन अदर वर्ड्स अगर हम इतना बड़ा गैप ना रखते नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान, पॉजिटिव को नेगेटिव के अगर हम करीब ले आए तो हम मेजर कर सकेंगे कि हाँ जो वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये 5 से ज़्यादा हो के 8 पे चला गया था। तो कर्वेचर हम इस चीज़ को कहते हैं कि रिलेशनशिप स्ट्रेट ना हो बल्कि पैराबोलिक हो या किसी भी और शेप का हो। तो कर्वेचर्स को मेजर करने के लिए हमें अपने वेरिएबल्स की जो लेवल्स होते हैं उनको करीब करीब रखना पड़ता है, या डिज़ाइन में सेंटर पॉइंट्स रखने पड़ते हैं ताकि हम हमारी आंखों से ये चीज़ ओझल ना हो कि कहीं बीच में आउटपुट रिस्पांस बढ़ के वापस आया या कम होके वापस ऊपर आ गया। अब setting the factor levels too wide may cause the experiment to miss an important region or change in the output response। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इस एक्सपेरिमेंट, अगर ये जिस तरह की तस्वीर है इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमने डिज़ाइन किया तो ये बीच वाला जो चेंज है, काफ़ी बड़ा चेंज है, ये हमसे मिस हो जाएगा। अब इसी चीज़ की एक कोरोलरी क्या है कि हम अगर दूर रखेंगे तो बीच में वाली चेंज को मिस कर देंगे, लेकिन अगर बहुत ही करीब रख देंगे तो फिर भी चेंज नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बहरहाल चेंज होते होते एक डिस्टेंस तो चाहिए होता है। तो आपने फिर ये एक इंटेलिजेंट डिसीजन करना है। प्रॉबली हिट एंड ट्रायल के बाद आपको शायद पता लगे, लेकिन बहरहाल ये फैक्टर आपके जहन में होना चाहिए कि बहुत दूर रखेंगे तो बीच बीच की डिटेल मिस कर देंगे, बहुत करीब रखेंगे तो कोई चेंज हुई ही नहीं होगी, तो फिर कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स ऐसी जगह पे सेट होने चाहिए जहाँ पे चेंज डिटेक्ट होने का इम्कान हो। सो बेसिकली these levels should be set far enough apart to detect a difference in the response and to have enough statistical confidence in the change of the output relative to the experimental noise। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं, इतना भी हो कि आप फ़र्क भी डिटेक्ट कर सकें और इतना भी हो कि उस दौरान फ़र्क पड़ भी गया हो। तो हमारे केस में या जो हमने टेकिनस वाला एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है, इसमें हमने फ़ैसला किया कि हमारा जो ड्वेल टाइम है उसकी हायर वैल्यू होगी 20 सेकंड और लोअर वैल्यू होगी 10 सेकंड, या पॉजिटिव वैल्यू होगी 20 सेकंड, नेगेटिव 1 वाली वैल्यू होगी 10 सेकंड। या प्रैक्टिकली हम एक केस में उसको 20 सेकंड सोल्यूशन में डाल के रखेंगे और दूसरे केस में 10 सेकंड सोल्यूशन में डाल के रखेंगे। दूसरा हमारा वेरिएबल था टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, उसमें हायर वैल्यू है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, लोअर वैल्यू है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इट शुड बी द अदर वे अराउंड, सॉरी, कि 80 को नेगेटिव होना चाहिए और 100 को पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा हमारा वेरिएबल है कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, जिसकी हायर वैल्यू है 40% कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन और लोअर वैल्यू है 20% कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन। तो स्टेप 5 में हमने क्या किया कि हमने अपने तीनों वेरिएबल्स के हायर और लोअर लेवल्स सेट कर दिए। अब हम छोटी सी ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके स्टेप नंबर 6 पे चलते हैं।